आज महुआ मोत्रा को कैश फॉर क्वेरी यानी पैसों के बदले सवाल पूछने के मामले में उनको संसद सदस्यता उनकी निष्कासित कर दी गई है, यानी संसद से उनको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, जिसको लेकर के पूरा विपक्ष ने वॉकआउट किया पार्लियामेंट से और इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन पार्लियामेंट परिसर में ही किया गया। बिल्डिंग से बाहर आकर के महुआ मोत्रा के ऊपर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगाया गया और सवाल यह किया जा रहा है, लोग आपत्ति यही जता रहे हैं कि महुआ मोत्रा जिस तरह से बेहतरीन अंदाज में बोलती थी, अपनी बात रखने में वो अपनी बात को बखूबी रखना जानती थी और लगातार जिस तरह से अडानी को लेकर के उन्होंने सवालात पूछे थे और अडानी को लेकर जिस तरह से वो मुखर थी और लगातार अपने भाषणों में पार्लियामेंट के वो जो बोला करती थी उसके व्यूज सोशल मीडिया पर करोड़ों में जाते थे, लोग सुनते थे, सराहते थे, क्योंकि जो उनका एक बोलने में तसलसल है, जो लगातार वो बोलती हैं और जोश के साथ बोलती हैं, उस अंदाज को भारत की जनता पसंद कर रही थी। बस यही बात मोदी सरकार को पसंद नहीं आई और उनके खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र चक्कर के बिना किसी सबूत के सिवाय एक एफिडेविट के आधार पर उनकी जो है सदस्यता बर्खास्त कर दी गई। 2 मिनट की उनसे सिर्फ पूछताछ हुई जिसमें उनसे कुछ पर्सनल सवाल पूछे जा रहे थे। कुंवर दानिश अली भी उस कमेटी में शामिल थे, इनके साथ पहुंचे थे, उनकी भी दूसरे मामले में उनसे पूछताछ होनी थी। लेकिन जब पर्सनल सवाल पूछे जाने लगे महुआ मोत्रा से तो कुंवर दानिश अली ने भी उसका विरोध किया। कुंवर दानिश अली का और महुआ मोत्रा का मामला तकरीबन एक ही पीरियड का है, लेकिन कुंवर दानिश वाले मामले में अभी तक इंक्वायरी तक शुरू नहीं हुई है और महुआ मोत्रा मामले में उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है और उसके साथ ही उनका बंगला खाली कराने का लेटर भी आज ही उनको सर्व कर दिया गया है। बहुत ही फास्ट सर्विस है भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों के लिए जो उनका विरोध करते हैं, अडानी पर सवाल करते हैं या फिर आवाज उठाते हैं। इस पूरे मामले पर महुआ मोत्रा ने एक बाइट दी है जिसमें उन्होंने कुंवर दानिश के साथ साथ मुसलमानों के ऊपर जो हमला किया गया था भारतीय जनता पार्टी के सांसद के जरिए उसका भी सवाल उठाया है और इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी सफाई इस तरह से पेश की है। I'm allowed to speak inside Parliament. I'm using this opportunity to speak outside Parliament. I thank all my colleagues as part of the India Alliance. I thank my party, everybody for standing by me. The 17th Lok Sabha has indeed been historic. It is a house which saw the passage of the Women's Reservation Rescheduling Bill, but it has presided over the most tenacious witch hunt of one of 78 women MPs, a first-timer, a single woman with no political lineage, elected from a far-flung constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to thokdo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you're finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of 2 private citizens whose versions contradict each other in material terms, none of whom I was allowed to cross-examine. One of the 2 private citizens is my estranged partner who, with malified intention, masqueraded as a common citizen in front of the committee. The 2 testimonies have been used to hang me. They are at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's suo motu affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The 2 are at polar opposites. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It is no evidence of any cash, of any gifts, anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament.
What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance to buy all our infrastructure. Ramesh Biduri stands up in Parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to Parliament. Ramesh Biduri stood up and told Danish Ali, ye badwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside Parliament, outside Parliament, in the gutter, on the streets. Adim Hanghingstra Manobikotar Jodi Ami Keu Hoi, Shojon Harane Shoshane Toder Chita Ami Tulboi. We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bango. We don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. Used every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end. तो सुना आपने महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्योरी यानी पैसे के बदले सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद ध्वनि मत से लोकसभा ने यह फैसला किया है। एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ को निष्कासित करने की सिफारिश की थी। कमेटी का कहना है कि महुआ ने पैसे के लिए संसद की गरिमा को खतरे में डाला, इसलिए उन पर कठोर कार्रवाई हो। 500 पन्ने की इस रिपोर्ट में एथिक्स कमेटी ने दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट को सच माना है। हालांकि रिपोर्ट पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और इसे नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बताया। एथिक्स कमेटी के सदस्य गिरिधारी यादव ने कहा है कि महुआ मामले में नियमों की अनदेखी की गई है और उनकी सदस्यता जानबूझकर ले ली गई। महुआ मोइत्रा पर हुई कार्रवाई का विपक्षी पार्टियों ने विरोध जताया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, महुआ को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने इसके जवाब में कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सदन में प्रस्ताव पर सिर्फ चर्चा होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने मांग करते हुए कहा कि महुआ को पक्ष रखने का मौका दिया जाए, जिसे स्पीकर ने ठुकरा दिया। महुआ मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट पर 3 सवाल उठ रहे हैं। नंबर 1, तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि महुआ मामले में जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। संसद में महुआ को पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं दिया। महुआ के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उस अधिकांश बीजेपी के सदस्य थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा महुआ को पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है, ये रिपोर्ट आधी अधूरी है। नंबर 2, जेडीयू सांसद और एथिक्स कमेटी के सदस्य गिरिधारी यादव के मुताबिक एथिक्स कमेटी में दर्शन हीरानंदानी को क्रॉस एग्जामिन के लिए नहीं बुलाया गया। कोई कमेटी किसी के एफिडेविट पर कैसे विश्वास कर सकती? यादव ने स्पीकर से कहा है कि कमेटी के चेयरमैन ने हीरानंदानी को बुलाने का वादा किया था। नंबर 3, गिरिधारी यादव एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहते हैं कि महुआ पर पूरा आरोप उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट के आधार पर लगाया गया था। बैठक में एफिडेविट के क्रॉस चेक के लिए किसी भी कारगर मैकेनिज्म का उपयोग नहीं किया गया। कैसे माना जाए कि एफिडेविट सच है? बड़ा सवाल है। सिर्फ एक एफिडेविट आता है, उनको बुला करके उनका बयान नहीं दर्ज कराया जाता, उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराई जाती। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि एक करीबी दोस्त
उनसे नाराज हो जाता है महुआ मोइत्रा से, और वो ये कहता है कि महुआ पैसे लेकर के सवाल पूछती हैं संसद में, और उसके बाद अचानक एक एफिडेविट, एक जो है वो शिकायतकर्ता सामने आता है और वो एफिडेविट देता है। तो ये पूरी कहानी जो है मनगढ़ंत लगती है। ऐसा लगता है जबरदस्ती महुआ मोइत्रा को फंसा करके ये एक्शन लिया गया है, और तुरंत एक्शन लिया गया। और उसके साथ ही दानिश अली का मामला भी उनके साथ ही खुला था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और भारतीय जनता पार्टी का फेवरेट सांसद होने की वजह से उसके खिलाफ अभी तक कमेटी की कार्रवाई भी शुरू नहीं की गई। और न सिर्फ यह कि निष्कासित किया गया है, बल्कि उसी दिन सेम डे जो उनका मकान है, उनका बंगला है, उसको खाली कराने का नोटिस भी दे दिया गया है।